Hello guys, Assalamu alaikum. How are you? Hope you're doing well. Today we are going to inshallah talk about affinity diagram and fishbone diagram. Yesterday we had covered क्या फेक फेक लग रहा है एक्टिंग. चलो बंद कर दे, दोबारा स्टार्ट करें. चलें पढ़ लेते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. देखो भाई, जो टीचर होता है उसमें सारी फैसिलिटीज़, सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. हेलो. हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वाह, आपको भाई राइटिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई होगी, है ना? इस तरह की राइटिंग किसी की भी नहीं होगी. अच्छा मुन्ने, कल हमने वी हैड टॉक, आई एम सॉरी, yesterday we had a word about outline of for writing an essay. And how many of us have written, read at least one article today? At least one article reading? No? You want to do child accountancy? Should have 5 articles every day, okay? 5 articles, maybe of your interest. You have interest in jungles, read jungle. You have interest in IT, AI, read it. You have interest in commerce, economics, read it, okay? So just find out, you have interest in boxing, sports, read. So you have to read every day, and I told you yesterday to read carefully and observe writing patterns in the writer's text. So we had discussed about at least minimum, bare minimum. But you should have more reading, better writing, better results inshallah. So we had discussed about outline. We had also talked about brainstorming strategies yesterday. And we had also discussed about the structure of essay. If anybody has missed it, please take the lecture, yesterday's lecture, very important. Structure of essay, and we had also discussed about the thesis statement, and we have also talked about the topic sentence, and we have also talked about intro, body, and the conclusion. Online wale guys, stay with us. Stay tuned. Where's the chat? Hi, hello. Hello. Okay. Stop share. Hello guys, can you see me and the screen now? I'm sorry you didn't tell me that the screen is not shared. Okay. Sorry guys. Okay, so we have just discussed all and moving on, we'll talk about further things. Further, we have fishbone diagram and affinity diagram. Very, very important, since it has 10 marks for each. You will have choice, either go for fishbone or go for affinity. Those who are planning to go for fishbone, it is based on cause and effect. Whereas affinity diagram is not based on cause and effect, it is based on argument. We call it argumentative writing. And fishbone, which is based on cause and effect, it is also the argument. But here the most important part is talking about causes and effects. Right? Understood? Clear? Now you have the choice, you have to choose. Maybe you can choose now if you want to go for fishbone or you want to go for affinity. Everyone? Right. So let's talk about fishbone first. Fishbone first or affinity? Fishbone. This is fish, and this is the center, and this is here. This is the fish.
Okay, so this is cause 1, this is effect 1. Cause 2, effect 2. Cause 3, effect 3. Okay, this is the simplest structure. Okay, this is fishbone, right? Cause 1, and both the cause and the effect will be linked. It is connected. Cause 1 will be linked to effect 1, and cause 2 will be linked to effect 2. Cause 3 will be linked. Okay, this is the simplest structure, but you can have the complex structure as well. You want to see the complex structure? The bigger fish, right? Where this is the title, or you can say the topic, or you can say the problem, or you can say the issue. Okay, and here cause 1A, cause 1B, cause 1C, effect 1A. It means more data. Effect 1B and so on. This is title or the problem or the issue or the concern. Okay, and here you have different causes and here you have different effects. Understood? The cause is the baby is crying. Okay, why is he crying? The baby is crying is the problem. Why is he crying? What is the cause? His mother might have slapped him, or he might have gotten the bottle of milk. Okay, and what is the effect? His cry actually is the effect. What other effects? Students studying in class are getting disturbed. Effect. Okay, traffic is jammed here, for example, on Shah Faisal. What is the problem? What is the root cause of this traffic jam? There is some special movements going on. Okay, and the traffic is, for example, stopped by the traffic police. So, what is the cause? Movement. And what is the effect? Traffic jam. Okay, and for example, further you can also think of solution. What is the solution? Okay, or maybe it's a bottleneck situation or something. So this is fishbone diagram. Let's move to the book and have a look at the fishbone diagram. For cause and effect occasion, can you see this screen? For cause and effect association, fishbone diagrams are used as brainstorming technique. It is more. It is called fishbone diagram because ideas are presented as fish skeleton. Fishbone diagram is essentially used to outreach the root cause of the problem and various factors that can be thought of as leading towards the problem. Okay. For example, for written business messages, fishbone diagrams are used to brainstorm or organize all possible causes of a business problem. For example, the company is going in losses and now you have to analyze the situation and you have to find out the root causes and the effect of it about the loss. In persuasive and argumentative writing, the fishbone diagram supports argumentative statements and provides supporting ideas to the thesis statement. This will be discussed later. Okay. Essential features. Nishaniyan kya kya hai? A problem statement on the extreme side, either left or right, as the head of the fish. Okay, a horizontal center skeleton line moving towards the head. Okay, and various factors or causes that can be thought of as leading towards the problem. ये मसाइल इधर जा रहे हैं. Okay, they are actually moving towards the problem, the root cause, the major concern. The cause would be connected to central line as branches. Causes or ideas supporting the factors are added to the branches. For example, have a look. For a detailed report on recent health and safety hazard at a chocolate factory, causes can be identified using fishbone diagram. Short circuit at an assembly line. Heating क्यों हुई थी? Overburdened machines. Power fluctuation. Voltage drop. Service mechanism management.
lack of preventive measures, human error, operator mishandling। एग्जाम में ये फिशबोन ऐसे नहीं बनानी, एग्जाम में तो सिर्फ इस तरह से लाइनें होंगी, ठीक है, cos 1, cos 2, cos 3 करके you have to provide the data. Title will be given and the data you have to collect। जैसे मैंने आपको बताया ना, लिस्ट बनाओ, लिस्टिंग करो, collect the data, ideas will be popped up and they will be collected। वो आइडिया आएगा, तुमने उसको आइडेंटिफाई करना है and you have to write it। या फिर अगर ये बना हुआ भी हो तो तुम्हें बस डेटा उसको इंसर्ट करना होगा एट द राइट प्लेस। इसमें you have the choice, you have option, either you will have the data given and you have to write and put in the right category, otherwise you have to write the data yourself। मैंने बताया नहीं था कि डेटा तुम्हें खुद भी लिखना होगा। अभी स्टूडेंट अपीयर हुआ, ने ये बताया कि डेटा उसने खुद लिखा, तो यू विल हैव टू हैव द डेटा कमिंग फ्रॉम योर ओन माइंड अबाउट द टॉपिक। और फिर असल तो ब्यूटी यही है कि डेटा खुद तुम लेकर आओ, सही है। ये यानी जो कुछ ये लिखा हुआ है, दिस डेटा, दिस आइडिया इज गिवन टू यू बट यू हैव टू फाइंड आउट दिस डेटा, ओके। ये डेटा आपके पास आएगा और आपने इसको एंटर करना है एट द राइट पोजीशन इन द राइट प्लेस। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट फिशबोन एंड वी हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ ऑन। देखो अब एक दिन तो गुजर गया, लेकिन नाउ ऑन यू हैव टू रीड, फाइंड आउट वन टॉपिक यू हैव टू राइट ऑन एंड फॉर दैट यू हैव टू रीड 2-3 आर्टिकल्स, 2-3 रीड करो और फिर एक आर्टिकल यू हैव टू राइट। और आर्टिकल भी नहीं तो कम से कम पैराग्राफ राइटिंग से स्टार्ट कर दो। एवरी डे यू शुड राइट 1 पैराग्राफ and with that you will inshallah improve, and send it to me and ask for the feedback। I'll give the feedback as well। जी बताओ, फिशबोन आ गई, समझ में आ गई? या इसमें 2-3 तरीके हैं, 2-3 चीज़ें। या तो सिर्फ यू विल हैव कॉजेज, या फिर यू विल हैव कॉजेज एंड इफेक्ट्स। लेकिन जो ICAP की चाहत है, जो चाहते हैं वो ये है कि एक कॉज और एक उससे रिलेटेड इफेक्ट, दूसरा कॉज, दूसरा इफेक्ट, तीसरा कॉज और तीसरा इफेक्ट, इस तरह से उसको लिंक करेंगे। दिमाग से। I have to write environmental pollution in Karachi। Now the data, the source will come from here। They are asking you in the course objective, they want you to read current affairs, they want you to read articles, they want you to be aware of what's happening around, so that then only you will be able to write। If you have knowledge about current affairs, you will be able to write। If you have knowledge about education, I told you the theme yesterday as well, sports, IT, education, technology and all। So you can read, start reading, read 1 to 2 to 3 articles and start writing। There is another book, I'll share inshallah the material with you। Look, it's like this here। एग्जाम सिचुएशन में ऐसे आएगा, हाँ। सो ऑल्सो क्रिएट अ फिशबोन आउटलाइन ऑन द टॉपिक, द मेजर इशू ऑफ पाकिस्तान एंड देयर इम्पैक्ट यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन। अबव इंफॉर्मेशन तो खैर ये है, यू हैव द डेटा अवेलेबल एंड यूजिंग दिस डेटा व्हाट यू हैव टू डू, आइडेंटिफाई व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द कॉज 1, कॉज 2, कॉज 3 एंड इफेक्ट 1, इफेक्ट 2, इफेक्ट 3। Both the cases are there। If the data is given, then you will follow it। If the data is not given, the data will come from your own mind। You need to practice, and with practice inshallah the data will automatically come। Okay? इसलिए बेहतर ये होता है कि तुम दोनों की प्रैक्टिस करो, FNAD की भी प्रैक्टिस करोगे, फिशबोन की प्रैक्टिस करोगे, फिर जो चीज़ आ जाएगी वो तुम करोगे। हाँ, इन दोनों में तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम फिशबोन पर जाओगे या तुम FNAD पर जाओगे। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारी कॉज इफेक्ट बेस्ड ज़्यादा प्रैक्टिस है या आर्गुमेंटेटिव राइटिंग की प्रैक्टिस है। डन। कमिंग बैक टू FNAD डायग्राम। फिशबोन समझ गए, मेजर प्रॉब्लम, कॉज एंड इफेक्ट। FNAD भी इसी तरह, FNAD तो कल जो आउटलाइन की थी उसी तरह है। देखो पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाते हैं आपको। FNAD डायग्राम और चार्ट organize random ideas into groups, themes or categories।
एक जैसे आइडियाज को एक कैटेगरी में करना है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सो मेनी स्टूडेंट्स देयर and you have to categorize them, you have to send them from different gates of the university. Engineering students all will gather at gate number 1. So these 10 students, they are from engineering department, they are category 1. Another category, for example, medical students, gate number 2, and these are the students. So it's like having themes, okay? Or for example, you will see assets in one category, capital in another category, liability in another category. So this is how you have to find out different themes. Pollution, क्या क्या pollution की types तुमने पढ़ी होंगी? Air pollution, चलो air pollution से मुतालिक data all in one side. Noise pollution का data on the other side. और कौन सी वाली है? Land pollution, water pollution. So जो related data होगा उसको बस categorize करना है. कर लोगे? तो ये होता है affinity. ये देखो दोबारा पढ़ता हूँ. ऑनलाइन वाले कोई सवाल हो तो यू कैन ड्रॉप हियर. Affinity diagrams or charts help organize random ideas into groups, themes and categories. This is used as one of the critical thinking exercise that helps you to think about ideas that are common or have similar context. Affinity charts or diagram involve either looking at random ideas for any recognized pattern or group themes, or it may also start with the header followed by the listing of ideas. बहुत आसान है, आसान है. मेन आइडिया आ गया. Students who attend BWCS course, इनकी एक थीम आ गई. Student who attend for example IT related course, ये एक और थीम आ गई. Students those who are doing for example other QMT course, right? So this is how you just have to categorize. Done? समझिए. अब ये देखो essential features, निशानियाँ क्या है? List of ideas that come to your mind without any inference. Identifying pattern within idea, keep similar ideas together. अब ये देखो कल हमने बात की थी, ये डेटा कहाँ बनाओगे? दिमाग में. ये डेटा आ गया, अब इसमें से तुमने बताना है कि कौन सा कहाँ जाएगा. ठीक है, ये देखो इन्होंने बना दिया. इन्होंने कहा भाई देखो दो चीज़ें तो हमें बहुत मेन लग रही हैं. वन इज एसेट्स, द अदर इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. अंडर एसेट यू हैव नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट. And under equity and liabilities, equity and liabilities. Non-current, tangible and intangible. Current, inventory, trade receivable and cash at bank. Equity, ordinary share capital. Revaluation reserve and retained earning. And here bank loan, trade payables and overdraft. आसान है, मुश्किल है. तो डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक यू विल हैव टू जस्ट कैटेगराइज इट एंड यू हैव टू मेक थीम. ये क्या है? स्टेप नंबर 1 है जो कल हमने डिस्कस किया. स्टेप नंबर 1 का मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कलेक्टिंग आइडियाज, एंड द आइडियाज आर कमिंग फ्रॉम माय माइंड एंड देन आई एम पुटिंग दोज आइडियाज इन ऑर्डर, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एफिनिटी और इन द फॉर्म ऑफ फिशबोन. जिंदगी में क्या सिर्फ ये दो ही ब्रेनस्टॉर्मिंग के तरीके हैं? नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. मैं फ्लो चार्ट बना लूँ, माइंड मैप बना लूँ, सिर्फ लिस्टिंग कर लूँ, या कोई बबल्स क्लाउड्स बना लूँ. आपको याद होगा ग्रेड 2 ग्रेड 1 में भी आपके टीचर ने कभी ऐसे राइटिंग पढ़ाते हुए कभी क्लाउड्स वगैरह बनाए होंगे. यू यूज टू राइट ऑन माई स्कूल, तो वो एक क्लाउड बना के और फिर वो लिंक करते थे, कलर भी करते थे. या फिर आपने माई फैमिली के ऊपर बनाया था, फैमिली ट्री बनाया होगा, और फिर आपने उसके ऊपर लिखा होगा माई फादर इज सच, माई मदर इज सच. याद है? भूल गए? चलो, तो मैंने आपको माशाल्लाह से 10 मिनट के अंदर फिशबोन भी पढ़ा दिया और एफिनिटी भी पढ़ा दिया. बोलिए वाओ. ठीक है, बस इसको कहते हैं थिंक डन. नहीं नहीं, थिंक एंड डन. फिर लोग कहते हैं यार इतनी जल्दी जल्दी कैसे ख़त्म हो जाता है कोर्स. ये देखो बस सोचिए और हो गया. ये होता है असली टीचर. आहा, ठीक है. अब देखो असली टीचर को टेंशन नहीं है, असली टीचर ने पढ़ाना है, बस बच्चे को समझ में आना चाहिए. अब बताओ, मैं बच्चे से पूछता हूँ, बच्चा पिक करता हूँ. यस, हाँ ठीक है. आपका नाम? मोहम्मद उमर. भाई विल टेल अस अबाउट फिशबोन डायग्राम. अब बताओ कि ये क्या है? हाँ, फिशबोन डायग्राम के अंदर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. ये क्या है? चलो मैं एक और बात बताऊँ. ये यहाँ देखो, ये क्या है? हेड तो है, लेकिन ये क्या है? अच्छा, टाइटल. और क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अच्छा, अब मैं इधर क्या लिख रहा हूं?
ठीक है, और इधर क्या लिख रहे हैं? समझ गए? एक और तरीक़ेकार इसका, जिस तरह मैंने कहा कि एग्जाम में आएगा, वो क्या होगा? लिख दोगे मेन कंसर्न, मेन इशू लिख दोगे? हेलो भाई बोलो, लिख दोगे? है ना, ठीक है जी। हेलो, यस, okay, so this is how, and the other one is affinity is based on theme 1, theme 2, theme 3. Under each theme you have, for example, 2 themes, theme 2 supporting sub theme 1, sub theme 2, and then under each theme you have some data. Done? अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ रहे हैं आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। बच्चे ने हमें 5 बजे तक का डेडलाइन दिया है, बच्चा हम कर देंगे, आप बेफिक्र हैं। नीयत साफ, मंजिल आसान। सुने, नीयत साफ मंजिल आसान इज इक्वल टू सीए की नीयत इंशाल्लाह कंप्लीशन की गारंटी। ठीक है, वाह, ये तो एक फॉर्मूला बन गया। अच्छा प्यारे बच्चों, देखो अब एक चीज है। हेलो, क्या हुआ? अच्छा देखो, अब देखो बात करनी की है। देखो अगर तुम्हें आर्ग्यूमेंट करना है, तुम्हें क्या करना है? आर्ग्यूमेंट करना है, एंड यू हैव अ डिस्कशन और द बहस एंड द मुबाहिसा, तो क्या होगा? क्या करेंगे? कैसे हम जीत सकते हैं? कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं? बताइए। अपनी मम्मा से हो सकता है, किसी आंटी से हो सकता है जी, जिद करेंगे, रोएंगे, ठीक है, और जिद कर सकते हैं। दिस वन आइडिया। ये तो बच्चों वाली बात है। और बड़ी सोच करो, यू हैव टू कन्विंस समबडी। क्या क्या करेंगे? लॉजिक, वेरी नाइस, लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रूव दैट आइडिया और द इशू। मैडम आप साथ हैं, वो दूसरी वाली आइडिया है, तो हम उसको प्रूव करेंगे। और व्हाट एल्स? एनालिसिस करेंगे केस का और पेश करेंगे। और जो तुम बात करते हैं जिद करेंगे, वो भी ठीक है, उसको कहते हैं इमोशनल अपील करेंगे। लॉजिकल अपील करेंगे, इमोशनल अपील करेंगे, या मिक्स्ड अपील करेंगे। और ठीक है, कोई बात होगी तो प्रूफ देंगे, रेफरेंस देंगे, एग्जाम्पल देंगे। धमकी नहीं, यहाँ पर अभी हमको धमकाना नहीं। हाँ वो भी होता है। इसका एक्सट्रीम लेवल में होता है कि कोर्ट जाने की धमकी होती है, और अगर वो अपने मोहल्लेदारी के अंदर होता है तो फिर तू बच वाली होती है कि तू बच। ठीक है, तो बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं। अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। चिल्ड्रन विल लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज more easily if it is integrated with another subject. If you want to teach English language to the students, you can teach English language through science subject, you can teach English language through economics subject, you can teach English language in any mathematics subject. ये कह रहे हैं, this is the topic. Children will learn a foreign language more easily if it is integrated with another subject. This is the title. It's written discuss. It means it is argumentative writing. अच्छा, अब जब भी आर्ग्यू करेंगे, हमने किसी को किसी बात पर राजी करना है, हमने कहना है भाई ARTT में पढ़ो, तो वी हैव टू हैव एडवांटेजेस ऑफ समथिंग, वी हैव टू हैव द नेगेटिव्स ऑफ द सेम थिंग। दोनों चीज़ें बताने के बाद हम बताएंगे देखो कि एडवांटेजेस ज़्यादा है, तो हैंस प्रूव दैट यू शुड डू दिस। या तुम CA करो, तुम इंजीनियरिंग में क्यों जा रहे हो? तुम्हारी 95% है, ठीक है, तुम NIT जा रहे हो, लेकिन ना जाओ, वहाँ तुम्हारी सैलरी इतनी है और यहाँ देखो इतनी आ रही। अब तुमने कन्विंस करना है, उसको तैयार करना है, उसका माइंड मेकअप करना है, ज़हन बनाना है। तो नाउ यू हैव pluses and minuses of both.
उधर के प्लसेस, उधर के माइनसेस, यहाँ के प्लसेस, यहाँ के माइनसेस, और फिर तुम उसको प्रूव करोगे, देखो यहाँ पर पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा है, एडवांटेजेस ज़्यादा, तो ये कर, ठीक है। तो इस तरह, तो इसके लिए कुछ टर्म्स यूज़ करनी है। क्या टर्म यूज़ करनी है? प्लस और माइनस, बेनिफिट और ड्रॉबैक, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अ पॉजिटिव एस्पेक्ट और द नेगेटिव फीचर, प्रॉस एंड द कॉन्स, प्लस एंड द माइनस, ठीक है। वन मेजर एडवांटेज इज दिस, अ सीरियस ड्रॉबैक इज दिस. One drawback to integrating content and language is the demand it places on the teacher. अगर हम अंग्रेजी पढ़ाना चाह रहे हैं साइंस के सब्जेक्ट में, तो टीचर के ऊपर ज़्यादा डिमांड होगी ना, टीचर को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी. A significant benefit of teaching a subject through language is the increased motivation to master the language. तो आपने देखा कि एक आपने ड्रॉबैक दे दिया और एक आपने उसका बेनिफिट दे दिया. तो देखो तुम एक तरफ होगी ना, तुम या तो एडवांटेजेस वाली साइड पर होगे या डिसएडवांटेज साइड पर होगे, या तुम उसकी फेवर में होगे या फिर तुम उसके अगेंस्ट होगे. अगर तुम फेवर में भी हो तो तुम अगेंस्ट वाली बात करने के बाद उसको काउंटर करके उसकी फेवर पर आओगे. सही है, वो हम उसको सीखेंगे यहाँ पर. अच्छा, अब एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं. अभी आपने देखा एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्लस माइनस, बेनिफिट, ड्रॉबैक, पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट. तो ये थोड़ी सी एक्टिविटी करें. जस्ट फिल दीज गैप्स with the same words. उसी वोकैबुलरी के साथ इसको फिल करने की कोशिश करें, फिर हम डिस्कस करते हैं. मुस्फिर, वो तो कोई मसला नहीं. यू कैन यूज फॉरेन लैंग्वेज एज वेल, यू कैन से इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल. फॉरेन लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है, इंग्लिश लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज एक स्पेसिफाई कर देते ना. Every year, millions of students choose to study in a foreign country. This can have considerable, उन्हीं वर्ड्स में से निकालने हैं ना. Such as the chance to experience another culture, but also involve certain. ये आपको सिखाया जा रहा है कि आपने जब आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग करनी है तो ऐसी लैंग्वेज यूज भी करनी है, विच में इंक्लूड फीलिंग ऑफ आइसोलेशन और होम सिकनेस. अनदर नो 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 नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहे हैं ना, तो नेगेटिव ही होगा. मे बी द हाई कॉस्ट इन्वॉल्विंग बोथ फी एंड लिविंग एक्सपेंसेस. हाउएवर, एक चीज और देखो, ये इस तरह के जो वर्ड्स है हाउएवर और उसके बाद कॉमा, ये भी आपने लगाने हैं एग्जामिनेशन के अंदर. इस तरह से आपने कनेक्ट करना है अपने आर्टिकल को. मोस्ट स्टूडेंट्स अपीयर टू फाइंड दैट द एडवांटेजेस और प्रॉस और पॉजिटिव एस्पेक्ट और बेनिफिट्स आउटवे द ड्रॉबैक. And the chance to join an international group of students is a major एडवांटेज कर दें या क्या कर दें? मेजर, हाँ एडवांटेज कर दें, मेजर एडवांटेज. भाई कोई बाहर से पढ़ के आएगा तो एडवांटेज है ना इन डेवलपिंग अ करियर. ठीक है, तो दिस इज द लैंग्वेज विच यू हैव टू यूज इन योर आर्गुमेंटेटिव राइटिंग टू गेट बेटर मार्क्स. सही है, समझ गए? तो इसमें तो सिर्फ हमने बात की है प्लसेस और माइनसेस की. आए भी हम देर से, पढ़ा भी हमने थोड़ा सा, तो फिर जल्दी किताब बंद क्यों होगी? हाँ, हम तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा नहीं भी लेते तो हम कम से कम अपने डॉट तक तो पहुँचे ना. बयान, सुभान अल्लाह. ये तुम्हें किसने बताया? किसने बताया था? अच्छा, पढ़ चुके हैं. बयान भी करेंगे यार, अभी तो नवी क्लासेस है ना, करेंगे इंशाल्लाह. 3 से कब तक? 5 तक करेंगे, 4:30. अच्छा, आप सुनो, ये देखो, वैसे तो स्ट्रैटेजीज है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा. मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं. देखो, एक पैराग्राफ में हम ड्रॉबैक्स लिख सकते हैं यानी नेगेटिव, बेनिफिट्स लिख सकते हैं पॉजिटिव, और हम डिस्कशन करके एक न्यूट्रल स्टेटमेंट देकर
हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारा स्टैंस क्या है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, prisons are expensive, maybe universities of crime. Most prisoners re-offend after leaving. Many prisoners have mental health problems and that are untreated. ये उसने एक नेगेटिव बात बता दी, वो जेलों के खिलाफ है। जो ऑथर है, ऑथर इज अगेंस्ट प्रिजन्स, वो जेलों के खिलाफ है कि किसी को उस बेचारे ने कुछ ज़रा सा कुछ पी लिया, उसको बंद कर दिया फजूल में। किसी ने ज़रा सा उसको छुरा ही मारा था, उसको उठा के जेल में बंद कर। ये फजूल में बंद क्यों करते हैं? तो वो कह रहे हैं कि जेल में बंद नहीं करना चाहिए। अब देखो उसने पहले ड्रॉबैक बताए कि जेल में बंद करने से नुकसान क्या होता है। वो यूनिवर्सिटीज ऑफ क्राइम है, एक अच्छा खासा शरीफ आदमी, उसने सिर्फ एक छुरा ही मारा था, उसको बंद किया, तो जब वो बाहर निकला तो फुल चर्सी मवाली बन के निकला, नुकसान हो गया। सही है, पहले भी गलत था, लेकिन पहले थोड़ा गलत था। ऑथर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, ये ऑथर कह रहे हैं कि देखो वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम है, यूनिवर्सिटी होती है वहाँ एजुकेशन मिलती है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम में क्या है, वो मुख्तलिफ चीज़ें सीख रहा है। वो कह रहे हैं अच्छा तुमने कत्ल कैसे किया था, वो कहता है मैंने ऐसे किया था, मैं ऐसे छुपा था, ऐसे अटैक किया था। और दूसरा कहता है मैं तो ये चर्च बेचता था, वो कैसे बेचता था, क्या करता था, वगैरह वगैरह। तो कहने का मकसद है उसको फिर एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकातें होती हैं, उनसे चीज़ें सीखता है, उनसे पूछता है, उनके मसाइल समझता है, तो उसके अंदर क्रिमिनल जो है ना, वो इस तरह का जो नेगेटिव चीज़ है वो बढ़ जाता है। वो ट्रेन भी किया जाता है, एजुकेट भी किया जाता है, आर्टिस्ट भी बनते हैं, वगैरह वगैरह। खैर ये उसने एक नेगेटिव बात कर ली। अब वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, प्रिजन्स आइसोलेट डेंजरस क्रिमिनल्स फ्रॉम सोसाइटी। कह रहे हैं एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम एक डेंजरस क्रिमिनल को उठाकर कमरे में बंद कर देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं, तो वो एक सोसाइटी से निकल जाता है। एक्ट एज अ डेटरेंट और क्रिमिनल एक्टिविटी, मे प्रोवाइड एजुकेशन और ट्रीटमेंट फॉर ड्रग एडिक्शन, हो सकता है उसका इलाज भी करवाया जाए, प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। यानी उसने पहले उसकी नेगेटिविटी बता दी, उसकी जो उसके नुकसान था वो बता दिया प्रिजन का, उसने फिर उसका फ़ायदा भी बता दिया। अब वो अपना स्टैंस दे रहा है, क्या दे रहा है, अपना स्टैंस, अपना ख्याल बता रहा है। कह रहा है नंबर ऑफ प्रिजनर्स आर राइजिंग इन मैनी कंट्रीज विच सजेस्ट दैट द सिस्टम इज फेलिंग। कह रहे हैं इसका मतलब है कि आपका जेल का सिस्टम सही नहीं है, आपके तो जो क्रिमिनल्स हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, आपके जेल भरे हुए। एविडेंस दैट शॉर्ट सेंटेंसेज आर ऑफ लिटिल वैल्यू, जो छोटी छोटी सजाएं हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है, बट प्रिजन्स विल ऑलवेज बी नेसेसरी। लेकिन फिर कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, छोटी सजाओं वालों पे इनका फ़ायदा नहीं है, लेकिन कोई बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, कोई बड़े हाथ मारते हैं, कोई बड़े बड़े हो, तो उनको आप बंद करें तो उससे कोई फ़ायदा हो सकता है। तो बताने की बात यह, दिस इज़ वन पैराग्राफ। एग्जाम सिचुएशन में यू हैव टू राइट दैट वन पैराग्राफ। यू विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस, यू विल टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस एंड यू विल ऑल्सो गिव योर स्टैंस। अब ये नहीं है कि तुम एक ही तरफ हो गए और बस एक ही बात करोगे। जब भी तुम कभी एक तरफ हो और तुमने किसी को कन्विंस करना है, तो तुम उसकी पॉजिटिव और उसकी नेगेटिव भी बात करोगे और फिर अपना स्टैंस लें। पॉलिटिकल एफिलिएशंस में बड़े मसले होते हैं। एक बंदा कहता है मैं एक्स पार्टी में हूँ और जो मेरा एक्स लीडर है वो तो शानदार है। नहीं, यहाँ नहीं आएगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का पॉलिटिक्स में ज़रा इंटरेस्ट होता है किसी का इंटरेस्ट है? नहीं, कोई भी नहीं है। हाँ, और एक जो है वो वाई पार्टी के साथ होता है, ठीक है, और वो कहता है कि बस वाई पार्टी जो है ना वही है। एक जो है वो जेड पार्टी के साथ होता है। तो हर बंदा अपनी अपनी पार्टी के लिए जो है ना वो एक अच्छा व्यू पॉइंट रखता है, और फिर वो चाहता भी है कि मेरा जो दोस्त है वो भी मेरी वाली पार्टी को ही जो है लाइक करे। तो उसने भी उसको कन्विंस करना होता है। जब कन्विंस करेगा तो उसकी एडवांटेजेस बताएगा, वहीं पर डिसएडवांटेज भी बताएगा, लेकिन फिर बताएगा कि ये देखो, लेकिन ज़्यादा तो क्या है इसमें फ़ायदे। नहीं समझ में आया? हेलो, इज इट क्लियर और नॉट? चलो इसकी तो मेरी मिसाल लो। तुमने सर तला सलीम के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, आर्ग्यू करना है, कन्विंस करना है किसी को कि भाई पढ़ो, तो किससे पढ़ो? सर तला सलीम। अब सर तला सलीम से पढ़ने के लिए उनके एडवांटेजेस भी बताओ, प्लसेस भी बताओ, और फिर ज़ाहिर है कोई ना कोई नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव भी बताओ। लेकिन फिर तुम कहोगे कि नहीं ये जो है, हाँ, और अगर तुमने करना ही नेगेटिव है, नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो फिर क्या करोगे? बोलो ज़्यादा नेगेटिव बताओ, फिर थोड़े से पढ़ने बताओ, हाँ अच्छी बात भी है, लेकिन सारा ही नेगेटिव को फ़ायदा नहीं। तो हमने जिस तरफ जाना है हम उस तरफ माइंड मेकअप कर सकते हैं। और यही चीज़ बीइंग प्रोफेशनल, इंशाल्लाह कल को तुमने चार्ट अकाउंटेंट बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तुमने सीनियर CEO, डायरेक्टर, हेड, CFO बनना है, तो तुम्हें यू विल हैव टू परसुएड पीपल, यू हैव टू कन्विंस। कोई जॉब छोड़ के जा रहा है, उसको रोकना है, भाई जॉब छोड़ के नहीं जाओ, उसको बता दें ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, ठीक है। तो जो भी है, तो हमें परसुएसिव स्किल्स हमारी, या फिर हमें कोई चीज़ बेचनी होगी, मोबाइल बेचना है, कोई और चीज़ बेचनी है, प्रोडक्ट बेचनी है, तो उसको सेल करने की भी हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्किल्स कैसे पैदा हो रही हैं? ये परसुएसिव स्ट्रेटजी के ज़रिए हम इसको अप्लाई करते हैं और हम इसको समझते चले जाते हैं। आई होप यू आर enjoying and you like it. We still have माशाल्लाह good 7 minutes,
तो हम इसका मतलब है कि छोटी सी एक एक्टिविटी कर सकते हैं. बोलिए वाह. हाँ सर, वी लाइक द आइडिया. व्हाट्स दैट? Brainstorm the positive and negative aspect in the box below and then write an outline using one of the structures, vertical or horizontal. आपने घबराना नहीं है. तुम सिर्फ 3 पॉइंट मुझे लिख दो. क्या टॉपिक है? वर्किंग फ्रॉम होम कैन बी पॉजिटिव फॉर मैनी कंपनीज एंड देयर एम्प्लॉइज. 3 पॉइंट वर्किंग फ्रॉम होम के फेवर में लिखो, 3 पॉइंट वर्किंग फ्रॉम होम के अगेंस्ट लिख दो. डन. इतू सा काम. नहीं अभी अभी. और ये कर दो और जल्दी से मुझे बताओ. वर्किंग फ्रॉम होम कैन बी बेनिफिशियल फॉर. वाह, बस तुम लोगों को मैं दूसरे ग्रुप के साथ ले आया. फिर बोलिए वाह. और अगली क्लास इंशाल्लाह हमारी होगी कंबाइन. कुछ बच्चे तो वैसे ही खुश हो रहे, कंबाइन होगी, ये खुश हो रहे. नहीं, वी विल चूज. ओके ओके जी. हरी अप फास्ट. एक कॉपी होनी चाहिए सबके पास. और कल ज़रूर जो है इसके ऊपर आपने एक आर्टिकल लिख लेना है. ठीक है, 2-3 आर्टिकल पढ़ लो. वर्किंग फ्रॉम होम कैन बी पॉजिटिव फॉर मैनी कंपनीज एंड देयर एम्प्लॉइज. और कम से कम एक आर्टिकल तो लिख ही लो. Three points in favor, 3 points against. Done? Very good. If you are done, clap once. नहीं, ज़्यादा करोगे तो कुछ और हो जाएगा. एक करना. मुस्फिरा. ओके, ये बताओ दूसरे सब्जेक्ट में कहीं बन गया? व्हाट्सएप ग्रुप बन गया? हाँ, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह एंड यू कैन ज्वाइन. ठीक है, जो एक ग्रुप बना हुआ उसी में ऐड करवा लूँगा आपको. डन. हरी हरी फास्ट. इट्स योर एग्जिट टिकट. जी, should we discuss now? Okay, बताइए, what are the advantages working from home can be beneficial? Saves cost. Okay, transportation cost. Save energy. Comfort. Operating expenses of the organization reduces. Working hours easy, comfort zone, comfortable. What else? Advantage. Time saving. अच्छा, नेगेटिव बता दें. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम? डिस्ट्रैक्शंस, अटेंशन स्पैन, लेस एक्सपोजर. एक्सेलेंट. वीक इंटरनेट, मे बी इंटरनेट रिलेटेड इशूज, अटेंडेंस रिलेटेड इशूज इफ यू आर प्रोवाइडिंग गिविंग कंप्लीट आवर्स और मैक्सिमम टाइम और नॉट. बिल्कुल, हाइब्रिड भी ज़रूरी है उसके लिए. राइट. तो इस तरह से आप अगर फेवर में जा रहे हो ऑफ द टॉपिक, यू कैन गिव फेवर स्टेटमेंट इन द एंड, एंड इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द टॉपिक, यू कैन गिव अगेंस्ट स्टेटमेंट इन द एंड. सो वी एंड द लेक्चर हियर एंड स्टिल वी आर अर्लियर, 2 minutes अर्लियर. इट्स वाओ. ओके, थैंक यू, टेक केयर. याद रखना है, जब भी अब आर्टिकल करोगे या तो कॉज इफेक्ट बेस करोगे, फिशबोन बनाओगे, और या फिर सिंपल आर्गुमेंटेटिव करोगे तो एफिनिटी बनाओगे. अल्लाह हाफिज़. यस एक्सपेक्टर, मैं लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है भाई. मुझे हाई कर देना तो मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा. यू कैन ज्वाइन. दिस इज माई नंबर.
Okay, so you can just contact and inshallah I will share the link. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.